1 second. It is just give me 1 minute. I need to change the setting of this. Okay. I will continue with the beta function. Okay, only one type is remaining, last type. Okay. So first three types are just 1 minute. Yeah. So first three types are depend on the definitions. Okay, there are three definitions for beta function. So can anyone quickly tell me the all three definitions? Yes. Anyone? Can you try? What is our first, second and third definition? Yes. First क्या थी? What are the limits? What are the limits? Yes. बीटा फंक्शन की पहली डेफिनेशन क्या है? What are the limits? Integration from. Are you there or not? 0 to 1. 0 to 1. Okay. Then t raised to m, 1 minus t raised to n dt, and that gives me a beta of m plus 1 comma n plus 1. Correct? Can you tell me the second definition? Anyone? So 0 to infinity. Very good. 0 to infinity. X raised to m minus 1 by 1 plus x raised to m plus n. Very good. M plus n dx, and that gives me beta of m comma n. And जो last lecture की definition थी, that is from 0 to pi by 2. Can you tell me that? Anyone? Sine of 2m minus 1. हाँ, but it's instead of that you can remember directly for p. हाँ, sin raised to p theta cos raised to theta. हाँ, and it is equal to what? p plus 1 by 2. हाँ, 1 by 2 beta of p plus 1 by 2 q plus 1 by 2. Very good. इतना ही हमने अभी तक कवर किया. And now we are at fourth type. Correct? So these are the specific integrals that you need to remember. X minus lower limit, you can see the form. This is your lower limit. So x minus lower limit raised to some power and upper limit minus x. So here we know this x is lies between your x is lies between a and b. Correct? And you have to set the positive values here. So x minus a, okay, x minus a and b minus x, like this. Okay, so and raised to some power. So this integrals can be solved using this बीटा फंक्शन. ओके, तो आपको इस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करने, यू हैव टू कन्वर्ट दिस गिवन इंटीग्रल इनटू दिस डेफिनेशन. सो जस्ट लेट मी, ओके, let me start from next slide. So what is your fourth type? Type 4, that is examples of the form integration a to b x minus a raised to some power, just 1 minute. Okay, then b minus x raised to some power dx. Okay, and now we have to solve this example using beta function. Okay, so to do that we have to convert convert given integral in the form of, or convert given integral just 1 minute. So convert given integral into this definition. 0 to 1 t raised to some power, correct, 1 minus t raised to some power dt, and which is equal to beta of m plus 1
कॉमा n प्लस वन. ओके, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है. टू कन्वर्ट दिस गिवन इंटीग्रल इनटू दिस फॉर्म. करेक्ट. सो व्हाट इज आवर सब्स्टिट्यूशन? आई थिंक कल किसी ने आंसर दिया था इसका. सो व्हाट इज आवर सब्स्टिट्यूशन? कैन एनीवन टेल मी अगेन? क्या होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपका? यस, what is our substitution to convert this given integral into this form? Anyone? Okay, so let me write this. Okay, और ये आपने कल भी वर्कआउट किया है कि यही क्यों लेना है. यस, कैन एनीवन टेल मी दिस? x minus a is equal to, okay, how to remember this substitution? Okay, replace this first value by difference of the limit into t. Okay, तो यही क्यों लेना है आपको? बिकॉज दिस सब्स्टिट्यूशन, ओके, कन्वर्ट दिस लिमिट्स a to b into 0 to 1. आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है. एट देन वी हैव टू कन्वर्ट दो गिवन लिमिट्स इनटू 0 to 1. जो जिस डेफिनेशन में आपको कन्वर्ट करना है वो लिमिट्स पहले आपको मैच करना है, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन फिक्स दैट सब्स्टिट्यूशन. ओके, सो लेट अस चेक वेदर दिस सब्स्टिट्यूशन कैन कन्वर्ट दिस गिवन लिमिट्स, ओके, a to b लिमिट्स इनटू 0 to 1 और नॉट. अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो मे बी ये वर्क हो जाएगा. ठीक है, सो लेट अस चेक दैट फर्स्ट. सो जस्ट लेट मी गिव यू प्रूफ हियर. तो अभी सोल्यूशन स्टार्ट ही हो रहा है. सो इसमें इधर से ही कर लेता हूँ सोल्यूशन. ठीक है, सो सोल्यूशन में दिस इज माय सब्स्टिट्यूशन, एंड नाउ लेट अस चेक वेदर दिस सब्स्टिट्यूशन can convert this a to b limits into 0 to 1 or not. So for that consider a table where the limits of x are from a to b. Now check the limits for t. Correct. So when x is equal to a, क्या मिलेगा? What is the value of t? When x is equal to a, what is value of t? 0. When x is equal to b, what is value of t? b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. ये लॉजिक है इसके पीछे. ठीक है, सो दिस सब्स्टिट्यूशन कन्वर्ट a to b लिमिट्स इनटू 0 to 1. नाउ जस्ट कैलकुलेट द x. आपकी जो रेगुलर प्रोसेस है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेट द x. सो x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a इंटू t. कैलकुलेट dx which is b minus a into dt, and now write down the given integral. So given integral is equal to, so your new limits are from 0 to 1. What is the value of x minus a? It is b minus a into t. So that become b minus a raised to m t raised to m into b minus x की वैल्यू क्या है? अभी ये डायरेक्ट था ना, x माइनस ए की वैल्यू थी आपके पास, इसलिए मैंने डायरेक्टली रिप्लेस की है. बट नेक्स्ट केस में आई नो द वैल्यू ऑफ x ओनली, सो आई विल कीप दिस b एज इट इज एंड रिप्लेस x बाय दिस वैल्यू. तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन मुझे आगे क्या लिखना है? b माइनस वॉट? If I put the value of x, so that gives me b minus a minus of b minus t, and dx is again b minus a into dt. क्या होगा नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन? What is your next simplification? हाँ, what is your next simplification? क्या होगा? सर ते b आणि t मल्टिप्लाय करून कॉमन काढू शकतो ना? नाही अजून तर b मायनस ला कॉमन घ्यायचं मधल्या ब्रॅकेट मधून. तर ओके, सो इफ हियर, सो फ्रॉम दिस स्टेप इफ आई टेक b माइनस ए कॉमन, यहाँ पे भी b माइनस है, टेक दिस टर्म कॉमन, यहाँ पे भी b माइनस है, टेक दिस टर्म कॉमन, यहाँ पे भी b माइनस है, टेक दिस टर्म कॉमन, यहाँ पे भी b माइनस है. अगर इन सारे टर्म्स को आप बाहर लेते हो, ओके, एंड if I write it as b minus a, can anyone tell me what is the power, what is the final power of b minus a? यहाँ से बाहर आने वाला है with the power m, यहाँ से बाहर आने वाला है b माइनस, सॉरी यहाँ पे n रह गया ना, m प्लस n प्लस 1. ओके, यहाँ पे पावर n थी. ओके, हाँ, यहाँ से b माइनस ए रेस टू n बाहर आने वाला है और यहाँ पे पावर 1. यस, कैन यू रिपीट अगेन? m प्लस n प्लस 1. Very good. This is the whole power of b minus a, and in bracket you have to just write integration from 0 to 1 t minus t raised to m. yes, अपने कॉमन लिया तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ये भी कॉमन लिया तो ओनली t raised to n dt, and that is your final answer. So b minus a raised to m plus n plus 1. अब ये डायरेक्टली आप
फॉर्मूला भी याद रख सकते हो MCQs के लिए, क्योंकि अभी MCQs ही है. सो बीटा ऑफ क्या लिखना है मुझे, m+1, n+1. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, एंड प्रूफ यही है, हार्डली 2 स्टेप में प्रूफ है. आप देखो. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस. क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम just 1 minute कहाँ पे लिखे शायद इसमें मैंने नहीं ऐड की है. Okay, I can create integration from 4 to 7. Okay, x minus 4 square 7 minus x raised to 3 dx. Okay, अभी मैं कैन यू टेल मी डायरेक्ट आंसर. अभी तो हमने सॉल्व ही किया है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो MCQs के लिए, और मैं एक बार फिर से आपको सॉल्व करके भेज देता हूँ. सो कैन यू टेल मी डायरेक्ट आंसर क्या आने वाला है फ्रॉम दिस प्रीवियस रिजल्ट. दिस इज माय फाइनल आंसर. सर 3⁻6 into beta of 3 and 4. सो 7 minus 4 डिफरेंस आता है 3. सो 3 क्या लिखना है आप देखो, डिफरेंस जो है उसकी पावर क्या चाहिए, m+n+1. ओके, so this difference is 3. 7 minus 4 is 3, and its power must be m+n, 5 plus 1 6. करेक्ट है ये अदर स्टूडेंट्स? इज इट करेक्ट और नॉट? 3⁻6 इन दोनों का डिफरेंस, हाँ इन दोनों का डिफरेंस और इनके एडिशन +1, एंड देन इनटू मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ 2 + 1 3. करेक्ट, 3 + 1 4. Okay, so that gives me 3⁻6 into gamma of 3 into gamma of 4, 3 4 upon gamma of 7. Okay, and that is nothing but 3⁻6 2 factorial 4 factorial, sorry 3 factorial and 6 factorial. ठीक है, साइड बाय साइड एनीवन प्लीज वर्क डू दिस कैलकुलेशन. तब तक मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ. एंड 3 factorial into this. So this is your final answer. ठीक है. हाँ, अभी हम अगर आपको मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जस्ट बाय रिमेंबरिंग दैट फॉर्मूला यू विल गेट दिस आंसर. अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखते हो तो ही ये अप्रोच पॉसिबल है, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल. ओके, सो आई विल गिव यू नाउ द प्रॉपर आंसर. ओके, तो आपको क्या पुट करना था इसमें, अगर आप एक्चुअली इसको सॉल्व ही करते हो, सो हियर वी हैव टू पुट x बोलो बोलो यस यस. कैसे करना है इसके आगे, ये हमने डायरेक्ट लिखा है प्रीवियस फार्मूला कॉपी करके. अगर हमें इसको सॉल्व ही करना है, सो कैन यू टेल मी दैट व्हाट वी हैव टू पुट. x minus 4 x minus 4 is equal to this difference. ये डिफरेंस क्या है, 3 into t. ये आपको 1 मार्क के लिए एज ए MCQ आने वाला है. ओके, सो रिमेंबर दिस, टू सॉल्व दिस इंटीग्रल व्हाट इज दिस सब्स्टिट्यूशन. ओके, ऐसा एक क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा. ओके, दिस इंटीग्रल कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन. दिस इंटीग्रल कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. जो x जो फर्स्ट टर्म है x - 1 का टर्म, उसको रिप्लेस करना है आपको डिफरेंस ऑफ लिमिट्स इनटू t. डिफरेंस ऑफ लिमिट्स इनटू t. सो रिमेंबर दिस. ओके, तो ये भी एक पार्ट आपको आएगा और ये भी पार्ट डायरेक्ट सॉल्यूशन. एंड नाउ you have to just write down the value of x, which is 4 plus 3t. You can write dx, which is 3 dt. You can also check the limits, x और t के limits. x के given limits क्या है, 4 to 7, 4 to 7. Okay, when I put x equal to 4, t आपका 0 आ जाएगा. When I put x is equal to 7, 7 minus 4 3 cancel. Okay, here you will get 1. ठीक है. And now you can write your given integral. So given integral is equal to, your new limits are from 0 to 1. This whole term is replaced by 3t. So 3 square t square into 7 minus x की वैल्यू क्या है, x is 4 minus 3t raised to 3. dx की वैल्यू क्या है, 3 dt. ओके, सो दैट गिव्स मी क्या बाहर आने वाला है, 3 raised to what, ये 7 minus 4 मतलब 3 है ये.
तो बाहर क्या आने वाला है, 3 रेस टू 6 ही आने वाला है। ओके, स्क्वायर 3 5 और ये टोटल 3 रेस टू 6 इंटीग्रेशन 0 to 1 है ना, टी स्क्वायर 1 minus t cube dt and that gives me 3 raised to 6 बीटा ऑफ 3 and 4 हो गया। ठीक है, किसने किया है वर्कआउट? सर 243/20। 243/20। ठीक है, मैंने रैंडम दिया है। ओके, आई डोंट हैव दैट एग्जांपल, तो इसलिए रैंडम दिया है, बट यही है। इसके बाहर अब इसमें कुछ भी वैरायटी नहीं है। ओके, ये पूरा टाइप मैंने बस इस एग्जांपल से कवर किया। ओके, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, सब्स्टिट्यूशन आपको सारे क्वेश्चंस में, इन ऑल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन आपको सेपरेट आने वाला है 1 मार्क के लिए। 1 के आगे तो होगा नहीं उसका वेटेज। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है वो भी समझ में आना चाहिए, एंड आंसर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी क्लियर होना चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट। ओके, और कुछ है क्या? जस्ट लेट मी गिव सम रिमार्क्स एंड आफ्टर दैट we can end this beta function. Okay, so last में बस कुछ remarks देता हूँ मैं, which are important for MCQs, otherwise ये कुछ ज़रूरत नहीं थी। Okay, so okay, there is one formula in your book which is called as duplication formula. ठीक है, ये आपको बस एक बार go through करना है, इतना कुछ ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो गैमा ऑफ m इंटू, इसका यूज नहीं है कुछ ज़्यादा, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सो गैमा ऑफ m इंटू गैमा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 raised to 2m minus 1 गैमा ऑफ 2m। सो दिस इज द डुप्लीकेशन फार्मूला। यह एज अ 1 मार्क के लिए एज इट इज़ आएगा, इस पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जो भी अगर आप m की जगह पे वैल्यू लेते हो ना, वो सारा अदर मेथड से सॉल्व हो जाता है। सो नो नीड टू रिमेंबर और नो नीड टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स ऑन दिस फार्मूला, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला अगर MCQs में कहीं पे आ जाता है तो। ओके, तो ज़्यादा कुछ इस पर फोकस नहीं करना है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जस्ट फॉर 1 मार्क MCQs आई हैव टू गिव दिस फॉर्मूलाज। या there is one more result which I want to give you here. You can tell me the answer. 0 to infinity x raised to m minus 1 plus x raised to n minus 1 and the whole divided by 1 plus x raised to m plus n dx. Can anyone tell me what is the answer of this? 0 to infinity x raised to m minus 1 प्लस x रेस टू n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x, सॉरी यहाँ पे मुझे माइनस देना है साइन, सो माइनस dx। एनीवन प्लीज टेल मी दिस। और एक और लास्ट फॉर्मूला है, आफ्टर दैट वी कैन एंड दिस। या बोलो, एटलीस्ट फर्स्ट ट्राई टू टेल मी दिस थर्ड का आंसर क्या होगा, व्हाट यू गेस। यहाँ पे भी m प्लस n है, बोलो। ये हो चुका है, हाँ स्प्लिट करो फिर ना। क्या लिखना है? 0। वेरी गुड। ओके, दिस आंसर इज 0। व्हाट अबाउट दिस? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट अबाउट दिस? 2 into bit of m plus n। वेरी गुड। ये क्योंकि यहाँ पे करना क्या है, सेपरेट करो। ठीक है, सिंपल लॉजिक था, सेपरेट करो। सो व्हेन यू सेपरेट दिस, तो लिख लेता हूँ मैं एक केस में एटलीस्ट, 0 to infinity x raised to m minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n dx minus 0 to infinity x raised to n minus 1 अपॉन 1 प्लस x raised to m plus n dx। अभी आप बोलोगे कि हमने तो यहाँ पे m minus 1 लिया था सारे क्वेश्चन में। सी दिस m and n आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पहले ही पता है बिट ऑफ m कॉमा n इज ऑलवेज इक्वल टू बिट ऑफ n कॉमा m। तो यहाँ पे ऊपर m आने दो, n आने दो, इट विल नॉट मैटर विद द डेफिनेशन। So that's why this I can write it as, this is the standard definition of your beta function. So this I can write it as beta of m comma n। ये आप क्या लिख सकते हो, beta of n comma m, जो ऊपर का वो हम पहले लिखते हैं ज़्यादातर केस में। And we know that these two values are equal, so that gives me 0. In a similar way, same logic अगर आप यहाँ पे ऊपर follow करते हो, so in this case, in second remark, in between you will get this plus sign, and because of this plus sign, here you will get 2 times beta of m comma n. Is this clear to all? Is this clear? These two results? Yes. Yes। Okay, and now the last result.
सो दैट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये नहीं समझ में आएगा आपको, एक्स रेस टू एम माइनस वन, सेम जा रहा हूँ, मैंने लिमिट को बाउंडेड किया, प्लस एक्स रेस टू एन माइनस वन एंड होल डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एन। ओके, आप शायद शॉक हो जाओगे बट इसका भी आंसर आप बीटा में लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर डेफिनेशन यू कैन से ऑफ बीटा फंक्शन। ओके, क्योंकि आपको इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में हमने 0 टू इन्फिनिटी लिया था और डायरेक्टली हमने बीटा फंक्शन का रिजल्ट यूज किया था, बट जब आप 0 टू 1 लेते हो तो भी आपको इन टर्म्स ऑफ बीटा आंसर मिल रहा है। ओके, अब ये कैसे करना है उसका प्रूफ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट दिस प्रूफ। कैसे कर सकते हैं, कैन एनीवन टेल मी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना होगा? कैन यू स्टार्ट फ्रॉम LHS और RHS? क्या हो सकता है आपका अप्रोच? LHS से होगा या RHS से होगा? इतना बोलो बस मुझे, मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करते, लेट मी टेक द RHS, रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, RHS क्या है? बीटा ऑफ m कॉमा n। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा ऑफ m कॉमा n इन टर्म्स ऑफ दिस सेकंड डेफिनेशन? इस फॉर्मेट की एक डेफिनेशन है। सो व्हाट इज दैट? बोलो, ये जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, 0 to infinity. हाँ, वेरी गुड। 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एन dx। बट मुझे 0 टू 1 एडजस्ट करना है कैसे भी, तो क्या करना होगा मुझे? इफ आई ड्रॉ दिस ऑन रियल लाइन, 0 टू इन्फिनिटी, ये का ये यहाँ पे 0 होगा, इन बिटवीन 1 होगा और यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी आने वाला है। अभी बोलो, मुझे यहाँ पे 0 टू 1 कैसे भी करके पिक्चर में लेके आना होगा, तब जाके मुझे ये LHS मिलेगी। एनी हाउ आई हैव टू एडजस्ट दैट 0 टू 1 लिमिट्स। सो व्हाट आई कैन डू हियर? Substitute. नहीं, पहले तो 0 टू 1 एडजस्टमेंट करनी है, लिमिट्स की एडजस्टमेंट करनी है। सो कैन आई स्प्लिट दिस 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ 0 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी? कर सकते हो क्या आप ऐसे? Yes. Yes, sir. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? अगर आप 0 टू 2 जा रहे हो तो इन बिटवीन आप कितने भी पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो। सो दिस आई कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स रेस टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू m प्लस n dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू m प्लस n dx। अभी आप मुझे बोलो कि हमें कौन से टर्म पे फोकस करना है? ऑलमोस्ट एक 50% पार्ट हमने प्रूव किया है। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन ओनली वन टर्म। कैन यू टेल मी विच दैट टर्म? अगर आप अच्छे से देखते हो ना, ये पार्ट मिल चुका है, एक्स रेस टू एम माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एन, 0 टू 1 लिमिट्स। आधा पार्ट आपका प्रूव हो चुका है। अभी आपको क्या करना होगा? व्हाट इज योर क्लेम? व्हाट इज योर क्लेम? आपको इस इंटीग्रल में इस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करना होगा? कैन यू टेल मी दैट? कंपल्सरी आपको इस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करना होगा? अरे अगर आपको ये पार्ट प्रूव करना है तो ये इंटीग्रल आपको किस में कन्वर्ट करना है? X raised to n minus 1 upon 1 plus What are the x. limits? What are the limits? 0 to 1 1. Very good. 0 to 1 x raised to n minus 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू m प्लस n। अगर मैं ये जो सेकंड इंटीग्रल है, इस सेकंड इंटीग्रल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके, सो दैट कंप्लीट्स द प्रॉब्लम, ओके, और दैट गिव्स यू द LHS डायरेक्टली। ठीक है, नाउ टेल मी हाउ यू डू दैट। नाउ टेल मी द सब्स्टिट्यूशन। अभी ये आंसर मुझे आपसे चाहिए, सो यू हैव टू थिंक ऑन दिस। अभी आपका रोल क्या है? ये मैं लिखते समय ना टी में लिख लेता हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन बिटवीन एक्स एंड टी, क्या क्या पुट करना है। सॉरी, आपको मुझे सब्स्टिट्यूशन बोलना है, सो यू थिंक ऑन दिस। ओके, मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मेरे पास x के लिमिट्स है, पहले हमेशा लिमिट्स एडजस्ट करने की कोशिश करो। लिमिट्स है 1 टू इन्फिनिटी x के, मुझे चाहिए t के लिमिट्स। ठीक है, अभी ये मतलब एट द एंड मुझे t के लिमिट 0 टू 1 चाहिए, तो वहाँ पे आंसर 0 टू 1 भी आ सकता है और वहाँ पे आंसर 1 टू 0 भी आ सकता है। दैट इज अलाउड, ये आपको पता है।
बट कैसे भी करके मुझे t के लिमिट्स एक तो ये चाहिए या तो ये चाहिए. So now you please think on this and tell me what is the substitution for x. So in second integral मुझे क्या पुट करना है? Sir, 1 by x substitute. हाँ, put x is equal to what? हाँ ठीक है, आपने करेक्ट ही बोला था. 1 by x equal to what? आपका लिख लेता हूँ. T. हाँ वेरी गुड, क्योंकि वो रिवर्स आपको आंसर देगा. ओके, आपने आंसर क्या दिया? 1 by x equal to t. मतलब आपको क्या पुट करना है, क्योंकि x से स्टार्ट करना है ना. सो यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1 by t. ये उसका आंसर था. आप चेक करो अब ये वर्क होता है कि नहीं, है ना. तो दिस इज माय सब्स्टिट्यूशन, पुट x इक्वल टू 1 by t. नाउ लेट अस चेक द लिमिट. व्हेन माय x इज 1, t इज आल्सो 1. ठीक है. व्हेन माय x इज इन्फिनिटी, 1 by infinity बिकम 0, t इज 0. ओके, ये कन्वर्ट कर रहा है इजीली. ठीक है, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है. सो ये केस नहीं, बट एटलीस्ट सेकंड केस आपको मिल रही है यहाँ पे. ठीक है. सो जस्ट पुट x इज इक्वल टू 1 by t, दैट इज नथिंग बट 1 by x इक्वल टू t, एंड कैलकुलेट dx. सो दैट इम्प्लाइज व्हाट इज योर dx? dx इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt. अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाला हूँ डायरेक्टली. पहला पार्ट आप याद रखो. नेक्स्ट पार्ट में मुझे 1 to 0 लिखना है लिमिट. x की जगह पे मुझे 1 by t रखना है ना, और dx की जगह पे माइनस 1 by t स्क्वायर dt. सो लेट मी राइट दैट पार्ट नाउ. ओके, क्या था? RHS विच इज इक्वल टू बीटा ऑफ m कॉमा n, विच इज इक्वल टू, पहला पार्ट हमारा मैच हुआ था 0 to 1 m minus 1 1 plus x raised to m plus n dx प्लस लिमिट्स. क्या थे लिमिट्स? 1 to 0. प्लीज करेक्ट मी इफ आई आर रॉन्ग. ओके, यहाँ पे क्या था? लिख लेता हूँ मैं. चलो डायरेक्टली, मतलब ब्लैंक हो जाओगे आप. सो इट्स बेटर टू राइट. हाँ, यहाँ पे क्या आया था हमारा? 1 to infinity x raised to n माइनस, नहीं m ही था ना, सॉरी, ये सेम ही हमने एक्सटेंड किया है ना. सो m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू m प्लस n dx. अभी यहाँ पे हमने क्या पुट किया था? x इज इक्वल टू 1 by t, पीछे हमने शो किया है. सो दैट गिव्स मी, पहला पार्ट तो मेरा एज इट इज़ रहेगा 0 to 1 x रेस टू m माइनस 1 1 प्लस एक्स रेस टू m प्लस n. Is this value is equal to beta of m comma n? Is this value equal to beta of m comma n? हाँ? Is this correct or not? मतलब ये करेक्ट लिखा गया मैंने? क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 to, हाँ ये मिस्टेक हो, मतलब जब पेपर चेक, ओके नॉट फॉर योर बैच, बट ये मिस्टेक आप करते हो. हाँ, सो प्लीज चेक द लिमिट. ये बिटा m कॉमा n है ही नहीं, बिकॉज ऑफ द लिमिट्स 0 to 1. ओके, फिर हमने इसको चेंज किया था, हमने इसको 1 to 0 में कन्वर्ट किया था. x इक्वल टू 1 by t था, सो दैट गिव्स मी 1 अपॉन t रेस टू m माइनस 1. नीचे भी मुझे क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1 by t, दैट गिव्स मी दिस, और dx की वैल्यू थी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt. नाउ दिस माइनस साइन आई विल एडजस्ट हियर. सो फाइनली हियर आई विल गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेस टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू m प्लस n dx प्लस, अभी ये मैं माइनस इसमें एडजस्ट करने वाला हूँ. सो दैट गिव्स मी 0 to 1. हाँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ? ये t का पार्ट में सेपरेटली लिखता हूँ, है ना, दैट विल बी बेटर. तो ये मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन, ये होगा 1 प्लस टी रेस टू m प्लस n. नाउ व्हाट आर द टर्म्स ऑन न्यूमरेटर? ये ऊपर जाने वाला है ना. क्या ऊपर जाने वाला है? t रेस टू m प्लस n. नीचे क्या आने वाला है? t रेस टू m माइनस 1. और क्या है नीचे? t स्क्वायर dt. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेस टू m माइनस 1 1 प्लस एक्स रेस टू m प्लस n dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1. बोलो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ t? यहाँ पे t की पावर क्या आएगी फाइनली? इफ यू डू दिस कैलकुलेशन, t रेस टू m कैंसिल हो जाएगा. t रेस टू माइनस 1 t स्क्वायर बिकम t रेस टू 1, और ये n माइनस 1 हो जाएगा. तो इज दिस करेक्ट? n minus 3. चेक करो जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है क्या? हाँ सर. t रेस टू m कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस 1 प्लस 2 बिकम प्लस 1, ऊपर जाएगा तो n माइनस 1.
आप चेक करो एक बार फिर भी अगर कुछ मिस्टेक है तो. सो दिस गिव्स मी 1 + t raised to m + n dx. हो गया प्रूफ. अभी आप बोलोगे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो x में, यहाँ पे तो t में. ओके, शायद ये रिजल्ट आपने नहीं पता है तो मैं फिर से बोल देता हूँ. इंटीग्रेशन में ये जो dx है, दिस इज जस्ट द वेरिएबल. यू कैन असाइन एनी वेरिएबल टू दैट. मीन्स व्हाट, जब आप ये लिखते हो ना, इंटीग्रेशन a to b f of x dx, इसका जो आंसर है वो सेम ही आता है इंटीग्रेशन a to b f of t d. इसका मतलब क्या है? दैट वेरिएबल इज नॉट इंपॉर्टेंट. दैट वेरिएबल इज नॉट इंपॉर्टेंट. आप x में लिखो या t में लिखो, वैल्यू वही रहेगी. अगर मेरा फंक्शन f of x = x² है, तो जब आप t में लिखते हो तो वो t² बन जाएगा. So this is just the variable. Okay, dx, dt, these are just the variable. So you can instead of t you can write x, instead of x you can write t, instead of x and t you can write some k. It depend on you कि आपको क्या लिखना है. ठीक है. So finally RHS is equal to beta of m comma n is equal to integration from 0 to 1 x raised to m minus 1 1 plus x raised to m plus n dx. अभी ये पार्ट जो सेकंड आया था वो मैं x में लिख लेता हूँ, n minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n dx, and that completes your problem. Okay, this is nothing but integration 0 to 1 x raised to m minus 1 plus x raised to n minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n dx, and this is your LHS. and ये था आपका beta of m comma n which is equal to RHS. इसका प्रूफ आपको नहीं आने वाला, आपको भी पता है. ओके, तो इट इज़ बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. ओके, बट स्टिल इसका प्रूफ इजी था और कुछ आइडियाज आपके क्लियर हो जाएंगे. बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैंने ये प्रूफ दिया आपको. बट एट द एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस वन मोर डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर. एंड आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट बीटा फंक्शन, ऑल पॉसिबल. यस यस सर जब बीटा कैसे कैलकुलेट होगी सर फाइनली दो फंक्शन है ना? क्या विच बीटा बीटा तो हमने स्टार्ट 2 किया बीटा इनटू m. यहाँ से तो हमने सर जो फाइनल मुझे 2 इनटू बीटा ऑफ m n बोलेगा ना? नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या बोल रहा हूँ. LHS से RHS का आप क्या पे फोकस करो, मैं स्टेप बोलो. ओके, देखो यहाँ पे यहाँ से हमने RHS से स्टार्ट किया है. बीटा की ये डेफिनेशन है, इसको 0 to 1 1 to infinity में स्प्लिट किया है. अभी मेरा क्लेम क्या था, बस मुझे इसको 0 to 1 t raised to n minus 1 1 plus t raised to m plus n में कन्वर्ट करना था. सब्स्टिट्यूशन ये लिया हमने, और फिर ये जो सेकंड टर्म है इसको हमने, मतलब ये इन टर्म्स ऑफ t आ रहा था, बट आपको पता है t में लिखो x में लिखो, दैट डजंट मैटर. तो यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. ओके, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी या जस्ट टू एक्सप्लेन दैट स्टेप मैंने फिर से इसको x में लिखा है. एंड दोनों के एडिशन, अभी स्प्लिट है, ये दोनों सेम है ना, लिमिट सेम है ना, तो आप ऐड कर सकते हो इंटीग्रेशन. सो दैट गिव्स मी x raised to m minus 1 plus x raised to n minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n. एनी डाउट इन दिस प्रूफ? बोलो, जो नहीं समझ में आ रहा बोलो, फ्रैंकली बोलो, कोई इशू नहीं. यस, लेट मी स्लाइड. तो अभी उससे आप बोलो कुछ है क्या इसमें प्रूफ में? ऐसा पार्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है? यस, क्लियर है सबको? यस सर. ओके, हाँ. बट अब ये टॉपिक्स है ना, इनमें ज़्यादातर MCQs के लिए यू हैव टू फोकस मोर ऑन द फॉर्मूलेज. ठीक है, हाँ. बट कोई भी कंसेप्ट आप लर्न करते हो तो बेसिक चीज़ें, प्रूफ, ये सारी चीज़ आपको अभी लेक्चर के टाइम पे भी क्लियर हो जाती है ना, तो आप बाद में आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन कर सकते हो. ओके, बट मेरा मतलब MCQs के मतलब MCQs एग्जाम की वजह से ये भी आपका एक लॉस हो रहा है. ओके, क्योंकि आपको ज़्यादा कंसेप्ट के ऊपर आप नहीं जाते हो. ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट लेक्चर में जो पढ़ा रहे ना वो क्लियरली आपको समझ में आता है ना, तो बाद में जब भी मतलब आप थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कभी भी आप अगर ऐसे कुछ इंटीग्रेशन अगर आप इसमें आ जाते हैं तो एटलीस्ट यू कैन गिव अ थॉट कि ये चलो बीटा से तो हो जाएगा, गैमा से तो हो जाएगा, ये आपको आगे भी लगने वाले सारे इंटीग्रेशंस. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड टाइप. एंड नाउ द थर्ड टॉपिक इज द रिडक्शन फॉर्मूले. ठीक है, third case is the reduction formulae. ठीक है, ओके. अब इसमें जस्ट 1 मिनट मेरे पास नहीं है.
Just 1 minute, let me take the examples from book only. रिडक्शन फार्मूले में इसमें एक रिकरिंग फार्मूला आपको आ जाता है, मैं बस थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जो यूज करके यू कैन राइट और यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल फॉर एनी n. फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसमें कुछ प्रॉब्लम लेके हम आगे जाने वाले, फॉर एग्जाम्पल, एंड दोज आर बिकम आवर स्टैंडर्ड फार्मूलेज. जो भी फार्मूलेज हम अभी इनिशियली प्रूव करने वाले उसका भी प्रूफ आपको एग्जाम में, जो भी मैं जहाँ पे भी मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करता हूँ ना उसका प्रूफ एक्सपेक्टेड है ही नहीं, या उसके ऊपर वो आपको याद रख के उसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करना. लाइक जो आपने 12th में 11th में आपने डेरिवेटिव लर्न किया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है, एंड 12th में आपने उसको क्या एज्यूम किया था ना, दोज आर योर स्टैंडर्ड फार्मूलेज, और फिर डिपेंड ऑन देम आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे. सेम लॉजिक है यहाँ पे, मैं पहले कुछ आपको फॉर्मूलाज देने वाला हूँ, ओके, एंड फिर जैसे वो फॉर्मूला सेट हमारा प्रिपेयर हो जाता है देन विल टेक द रैंडम प्रॉब्लम्स ऑन दैट पार्ट, ठीक है. एंड रिडक्शन फार्मूला में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमें एक रिकरिंग फार्मूला एक्चुअली फाइंड करना है, ओके. सो दैट रिकरिंग फार्मूला गिव्स यू द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल फॉर एनी n. फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है, 0 to π/2 sin raised to n x dx, ठीक है. हाँ, आपको भी पता है कि अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम दे देता हूँ 0 to π/2, आप क्विकली कैलकुलेट करोगे. चलो 3 भी कर देता हूँ, आप क्विकली कैलकुलेट करोगे. चलो 4 भी कर देता हूँ, आप करोगे, ओके. व्हाट अबाउट द केस इफ आई कंसिडर ईयर 99, ओके, फिर वो कैलसी में भी डिफिकल्ट होगा, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस हम बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. रिकरिंग मतलब डायरेक्टली n के लिए हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, इट डिपेंड ऑन n, तो फिर आप किसी भी n के लिए वो कैलकुलेट कर सकते हो. ये तो समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर? वो कि रिडक्शन फॉर्मूले में आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिनोट दिस इंटीग्रल बाय in, तो आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला मिलने वाला है, जैसे यहाँ पे होगा in इज इक्वल टू n-1/n समथिंग in-2. अभी देखते क्या आ जाता है वो, ठीक है. ऐसा कुछ एक फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है. एंड यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट वैल्यू फॉर एनी n. इतना ही करना है आपको रिडक्शन फॉर्मूले. इतना तो समझ में आ रहा है? Yes, sir, वो तो समझ में आ रहा है. बाकी एग्जाम्पल के इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस टॉपिक, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये टॉपिक टोटली कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाता है, ठीक है. सो दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा क्विकली लेने वाला हूँ, ओके. ज़्यादा भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके सारे एग्जाम्पल ऑलमोस्ट एक्सेप्ट 1 or 2 एग्जाम्पल, ऑल एग्जाम्पल्स यू कैन डायरेक्टली सॉल्व ऑन कैलकुलेटर, ठीक है. बट मैं जब तक टॉपिक नहीं होता तब तक आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा. टॉपिक होने के बाद हम ओके जिसको आइडेंटिफाई हो जाता है दे कैन आइडेंटिफाई एंड दे कैन सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स, ठीक है. बट ये सारे एग्जाम्पल्स MCQs में भी आप डायरेक्टली वन सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स ऑन कैलकुलेटर, बट उससे पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है ना. अभी इस टॉपिक में वो तो इशू नहीं आएगा, सारे स्टूडेंट को इसके आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा वो टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला, क्योंकि कैलकुलेटर में वैसे भी वो आंसर देगा, ठीक है. बट स्टिल एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ओके. अभी कैसे करना है विल सी 1 by 1. तो पहले चलिए, ये तो पता है मुझे कि sin raised to n का फॉर्मूला तो हमें कैलकुलेट करना है. सो लेट अस फर्स्ट डू दैट. जितना याद सर त्याला आपण अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट करून कसं करतो ना, अप्पर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मायनस एक्स, म्हणजे ते cos x मध्ये होईल, cos raised to n x मध्ये, आणि मग 1 ने ऍड करून. हाँ पता है, मतलब साइन की पावर अगर लेस रहेगी तो उस केस में ठीक है ना. पावर अगर ज़्यादा रहेगी तो फिर क्या करोगे, 99 के केस में क्या करोगे फिर? मग त्याला ते sin x आहे तो 99 मधून x sin x मायनस कमी करायचा, त्याला cos x मध्ये कन्वर्ट करायचा, sin x ला t देऊन त्याला dt मध्ये. हाँ करेक्ट ना, करेक्ट हाँ हाँ, मतलब वही लॉजिक है. एंड दैट आपने अभी जो भी बोला दैट इज अवर प्रूफ, ठीक है. तो अभी आपने जो अप्रोच बोला है वही से हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, एंड यूजिंग दैट फॉर्मूला यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर, ठीक है. आपने अभी जो भी बोला ना वही हमारा अप्रोच है. मैं आपको डायरेक्टली यही एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. सो लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. ये अभी फॉर्मूला है, दिस इज द स्टैंडर्ड, ओके. मैं ना
टाइटल ही दे देता हूँ तो ना आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे मुझे प्रूफ प्रिपेयर करना है. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूले. अब इसमें भी जहाँ जो जो पॉसिबल है उनके मैं प्रूफ देने वाला हूँ. एक दो प्रूफ मतलब ज़्यादा ही लेंथी है, 2-3 पेजेस का वो प्रूफ है. एंड आपको मैंने पहले क्लियर किया दिस प्रूफ इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. ठीक है, बट एटलीस्ट थोड़ी बहुत मतलब इनिशिएट करने के लिए मैं 70-80% केस में प्रूफ दे देता हूँ. कुछ ऐसे प्रूफ मतलब कुछ एग्जाम्पल है इसमें प्रूफ लेना पॉसिबल है ही नहीं तो हम वो स्किप करेंगे. ओके, नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला of in is equal to integration from 0 to pi by 2 sin raised to n x dx. इसका हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द प्रूफ. ठीक है, सो व्हाट इज गिवन, वी हैव in is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin raised to n x dx. ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे बाय पार्ट्स रूल से जाना है या बाय पार्ट्स रूल मुझे यूज़ करना है. ठीक है, सो फर्स्ट आई विल स्प्लिट दिस इंटीग्रल एज 0 to pi by 2 sin raised to n minus 1 x into sin x. अभी ये मैं आपको पूछता हूँ, नाउ इसके आगे मुझे बाय पार्ट्स रूल यूज करना है. मैंने इसको स्प्लिट किया, 2 टर्म्स लेके आ रहा हूँ मैं. ओके, बाय पार्ट्स रूल भी क्यों यूज करना है आपको आगे समझ में आएगा, बिकॉज मुझे आगे का पार्ट भी in में एडजस्ट करना है. ओके, तो ही जाके मुझे in का फॉर्मूला मिल जाएगा ना. अगर in मतलब रिडक्शन फॉर्मूला कैलकुलेट करना, इसका सिंपल मीनिंग क्या आपको मैं बोल देता हूँ. फाइंड, ओके लेट मी जस्ट गिव द डेफिनेशन, इट इज नॉट देयर इन बुक, बट करना क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला कैलकुलेट करना मतलब करना क्या है. ठीक है, फाइंड अ फॉर्मूला, फाइंड अ सॉरी ये मैं अपने लैंग्वेज में दे रहा हूँ. फाइंड अ रिकरिंग फॉर्मूला, ये आपको M3 में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा. फाइंड अ रिकरिंग फॉर्मूला विच इज फ्री फ्रॉम इंटीग्रेशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला. फाइंड अ रिकरिंग फॉर्मूला जो बार बार आप यूज कर सकते हो n वैरी करके, एंड विच इज फ्री फ्रॉम इंटीग्रेशन. सो आई डोंट वांट इंटीग्रेशन, मतलब कैसे भी करके मुझे RHS से एनी हाउ आई हैव टू रिमूव दिस इंटीग्रेशन साइन. आई डोंट वांट दिस इंटीग्रेशन. ठीक है, कैसे करना है आपको मैं दिखाता हूँ. तो पहले मैंने क्या किया, मैंने साइन रेस टू n को 2 पार्ट में स्प्लिट किया, साइन रेस टू n माइनस 1 इंटू साइन एक्स. नाउ यू टेल मी टू अप्लाई द बाय पार्ट्स रूल. बाय पार्ट्स रूल आपका जो 12th का है वही बाय पार्ट्स रूल. To apply the by parts rule, which term I have to consider as my first function and which term I have to consider as my second function, which is my u, which is my v. What you feel, क्या मुझे u लेना चाहिए और क्या मुझे v लेना चाहिए? Yes, बोलो, रैंडम गेस करो ना, मतलब उसके पीछे लॉजिक है, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करो कि आपको क्या फील होता है कि क्या कौन सा टर्म आपको u लेना चाहिए और कौन सा v. हाँ, v फंक्शन का क्या होता है बाय पार्ट्स रूल. बाय पार्ट्स रूल में v फंक्शन का क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन. करेक्ट है, बाय पार्ट्स रूल में. अभी जिनको बाय पार्ट्स याद आ रहा है उनके लिए ये सब कुछ होगा, जिनको नहीं याद आ रहा है उनके लिए क्या है, फिर मैं लिख लेता हूँ. a to b dx क्या है बाय पार्ट्स रूल. लिमिट्स के लिए बोलो, लिमिट्स के लिए बाय पार्ट्स रूल क्या है. पहले ब्रैकेट लिखना है आपको, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन कैलकुलेट दिस फॉर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड ब्रैकेट dx. ठीक है, दिस इज योर बाय पार्ट्स रूल. हाँ, अभी यहाँ पे भी मुझे ये सेम रूल यूज करना है. सो मुझे u एंड v को फिक्स करना होगा. तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि जो v फंक्शन उसका इंटीग्रेशन आता है, और जनरली जो आपका सेकंड फंक्शन होता है वो आपको सिंपल कंसिडर करना है.
जिसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन है एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू हैंडल. सो दैट्स व्हाई हियर आई विल कंसिडर दिस फंक्शन एज माई v एंड दिस फंक्शन एज माई u. ठीक है, जस्ट टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन. ओके, एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, इज इक्वल टू, बोलो अभी आप बोलो, ब्रैकेट, टेल मी क्या लिखना है. फर्स्ट फंक्शन मीन्स, बोलो, sin of n minus 1x. साइन रेज टू n माइनस 1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या है वो, Minus cos x. माइनस cos x, वेल लिमिट्स फ्रॉम 0 to pi by 2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2. करेक्ट. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हाँ, n minus 1 यस, गुड. साइन रेज टू n, x रेज टू n माइनस 1 n minus मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म विच इज cos x. cos x. दिस इज जस्ट, ये जो भी लिखा है ये अभी तक डेरिवेटिव ही चल रहा है फर्स्ट का. n x raised to n minus 1 multiplied by derivative of x. So n minus 1 into sin raised to n minus 2 x multiplied by derivative of sin x, which is cos x, and multiply by, yes, integration Minus cos x. minus cos x, then dx. ठीक है, अभी यहाँ पे जगह ज़्यादा नहीं है, बट अभी इस पर यहीं पे वर्कआउट करके फिर मैं नेक्स्ट स्टेप लिख लेता हूँ. चलो पहले इसमें बोलो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए क्या आंसर आएगा. साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0. तो अपर लिमिट के लिए टर्म 0 आता है. लोअर लिमिट के लिए चेक करो, साइन 0, Zero. तो ये पहला टर्म 0 है, करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट, ये माइनस साइन है, ये मैं बाहर लेके आता हूँ, माइनस माइनस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, n माइनस 1 भी बाहर आएगा. ओके, तो प्लस साइन n माइनस 1 बाहर, अंदर क्या लिखना है मुझे, साइन रेज टू n माइनस 2, और क्या मिलेगा ये cos स्क्वायर. हाँ, so can I write this as in is equal to n minus 1 only integration from 0 to pi by 2 sin raised to n minus 2 x into cos square x dx. ठीक है, आपको मैंने क्या बोला था, मुझे in इक्वल टू, ये मेरा in है, मुझे in इक्वल टू इंटीग्रेशन नहीं चाहिए. आई वॉन्ट अ फॉर्मूला विच इज फ्री फ्रॉम इंटीग्रेशन. ठीक है, मेरे पास क्या गिवन है, in की वैल्यू गिवन है, विच इज जो गिवन रिजल्ट है 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 sin raised to n x dx. ये मेरे पास है ऑलरेडी. मुझे कैसे भी करके राइट साइड में मुझे कौन सा टर्म एडजस्ट करना होगा, तब जाके मुझे सारे रिजल्ट in में मिल जाएंगे. मुझे राइट साइड में क्या करना होगा, आई वॉन्ट ऑल दिस टर्म्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट. अगर आपके पास in की वैल्यू है विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली, तो अगर आप इन सारे टर्म्स को साइन में कन्वर्ट करते हो तो वो सारे टर्म्स ऑलरेडी in में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो कौन सा टर्म आपको नहीं चाहिए, एज दिस in इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ साइन. फिर से सुनो अच्छे से, मुझे क्या करना है, आई डोंट वांट दिस इंटीग्रेशन, मुझे ये इंटीग्रेशन को यहाँ से रिमूव करना है. रिमूव करने के लिए एक ही ऑप्शन है, सॉरी, हाउ यू रिमूव दिस इंटीग्रल. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट. टाइम है ना. ओके, अभी मैं आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है. चलो थोड़ा टाइम जाएगा, बट ये लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा. यू डोंट नीड दिस लॉजिक वाइल सॉल्विंग द MCQs, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि ये सारे एग्जाम्पल कैल्सी में होने वाले. ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम 0 स्टेप अगेन. ओके, यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है, रिडक्शन फार्मूला है. रिडक्शन फार्मूले का मीनिंग क्या होता है, मुझे एक रिकरिंग फार्मूला चाहिए. ओके, विच इज फ्री फ्रॉम इंटीग्रेशन. मतलब in इज इक्वल टू, ऐसा मैं रैंडम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा एक कुछ फार्मूला यहाँ पे मुझे मिलेगा जिसमें कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं है. दिस इज, ये आपको चाहिए वहाँ पे. ओके, सो जब भी आपको इंटीग्रेशन, जब भी मैं बोलता हूँ कि आई डोंट वांट दैट इंटीग्रेशन और एलिमिनेट दैट इंटीग्रेशन, रिमूव दैट इंटीग्रेशन. ओके, तो टू डू दैट, ओके, और टू रिमूव दिस इंटीग्रेशन, what are the possibilities, to remove this integrations, what are the possibilities, just tell me कि क्या क्या possibility हो सकती है to remove this integration. एक क्या होगा, solve the integral.
सिंपल है ना। अगर आप इंटीग्रल को ही सॉल्व करते हो, अगर आपने इंटीग्रल सॉल्व किया तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाने वाला। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? एक तो इंटीग्रल को सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो क्या करो? क्या करो? रिप्लेस द इंटीग्रल। या सिंपली जो in की वैल्यू, ये आपके पास गिवन है ना। ओके, तो मतलब आपके पास एक रिजल्ट है 0 to पाई बाय 2 साइन रेज़ टू n, जहाँ पे भी आता है वो in से रिप्लेस होगा। 0 to पाई बाय 2 साइन रेज़ टू n जहाँ पे भी आता है वो in से रिप्लेस होगा। सो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। एक तो इंटीग्रल को सॉल्व करो तो वो इंटीग्रेशन रिमूव हो जाएगा, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है सो एडजस्ट इन in। यही पॉसिबिलिटीज रहेंगे सारे रिडक्शन फॉर्मूलेज में। ये पहला ही रिडक्शन फॉर्मूला चल रहा है, बट इन ऑल द रिडक्शन फॉर्मूलेज यही दो पॉसिबिलिटीज वहाँ पे आने वाले हैं। सो आई विल एक्सटेंड फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद ही आपको प्रॉपर समझ में आएगा टॉपिक। सो लेट मी जस्ट डू इट क्विकली। हाँ, तो यहाँ पे मुझे पहली पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, आई कैनॉट सॉल्व दिस इंटीग्रल, ये n में डिफाइन है। ओके, इट विल टेक टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसमें एडजस्ट कर देता हूँ, एडजस्ट इन टर्म्स ऑफ in। अगर in में एडजस्ट मुझे करना है तो मुझे क्या एडजस्टमेंट करनी होगी? आई डोंट वांट दिस कॉस स्क्वायर, सो इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर मुझे क्या पुट करना होगा? दो ही स्टेप में आने वाला है। आई डोंट वांट दिस कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर का कोई रिजल्ट है ही नहीं, कॉस के टर्म के लिए कोई रिजल्ट है ही नहीं। सो हाउ यू चेंज दिस कॉस स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन? क्या करना होगा? 1 minus sin square। हाँ, 1 minus रिप्लेस दिस कॉस स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका रीजन वही है क्योंकि जो in की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ साइन ही है। नाउ लेट्स कंप्लीट एंड सेपरेट करो, मल्टीप्लाई करो, सेपरेट करो। सो द फाइनल आंसर इज n माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, LHS में in है ही, साइन रेज टू n माइनस 2x। ओके, माइनस ये क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मैं सेपरेट भी करता हूँ, sin raised to n। तो मल्टीप्लाई करके मैं सेपरेट भी करता हूँ। n माइनस 1 को पहले टर्म से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड ऑल्सो आई विल सेपरेट दिस इंटीग्रल एंड दिस मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू साइन रेज टू n x dx। ओके, नाउ n माइनस 1, टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? dx रह गया। हाँ, टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? पहले इंटीग्रल की वैल्यू क्या है? हाँ, if this power is n, then my answer is in. If this power is n minus 2, then my answer is in minus 2। very good, n minus 2 minus n minus 1. If this power is n, then my answer is in. That is your final answer. If you simplify this, ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1 plus n minus 1. So that gives me n into in is equal to n minus 1। ये मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ना। ओके, सो यू कैन डू दिस सिंप्लीफिकेशन और यहाँ से मुझे in की वैल्यू मिल जाती है। सो in इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n in minus 2। You can do this simplification. This is the final reduction formula which is free from integration. ठीक है, so I think here we'll stop. This is just the one formula. ऐसे I think total there are 6 formulas. So we'll continue this part in next lecture. I think here we need to stop. Already I am extending the lecture. Okay, thank you all. Hello. हाँ, क्या हो पता है? Yes, sorry. Can you repeat? हाँ, हाँ रुचि बोल रही हूँ, सब क्या हो पता है? हाँ बोलो। हाँ हाँ सर, तो हमने फैकल्टी को बताया ना कि हमने लिंक्स वगैरह डाल दिए, बना दिया हमारे आईडी से। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि आप फिर आपका आईडी हमको दे दो, हम उससे ही लॉगिन करेंगे। हमने बोला कि अगर आप वैसे करोगे तो आपके नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारे नाम लिखेंगे। हाँ करेक्ट तो वो मैम। बोल रहे हैं कि ठीक है चलेगा। नहीं किससे बात की आपने ये? हमने वो जो हमारा ग्रुप है ना फैकल्टी के साथ, हम्म, तो हमने मैसेज किया तो जोशी मैम बोले कि मुझे नहीं पता, अभी आप लोगों ने आईडी क्रिएट की है तो हमको आपका आईडी पासवर्ड दे दो, हम उससे लॉगिन करेंगे। ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। हाँ सर प्लीज, क्योंकि हमने उनको बोला फिर ज़्यादा आर्ग्यू भी नहीं कर सकते ना मैम के साथ, हाँ ठीक है, इसलिए फिर हमने कुछ बोला नहीं। चलेगा मैं बोल देता हूँ उनको डायरेक्टली। हाँ हाँ हाँ, आप बोल देना। ओके हाँ। ओके, थैंक यू सर।